I hope I am visible. Yes, madam, you are visible. Just trying to share my screen. Okay, let's just get into it. Oh, okay, Yes, ma'am. sorry. Is it visible, Yeah, yeah, everyone? yes. Yes, madam, it is visible. Okay, and let If me just. possible, kindly make it landscape. Yes, yes, that is what I'm doing. Yeah. Yes, madam. Fine. Okay. So thank you so much, Preeti ma'am. It is as usual a pleasure to be with HRDC, and it is very kind of you to every time you introduce me, in such a wonderful way. So thank you so much. Many greetings to you all for this happy new year, and I believe this is your first day. So I wish you all to have a very happy and fruitful discussions, in this faculty development program. Yes. So my greetings to you all. The topic which has been allotted to me is gender sensitization, and of course its relevance in the contemporary era. And what is the best way to start this discussion, because today we are having the birth anniversary of Savitri Bai Phule. So another greetings to you all, because if she would not have been there, probably I would not have been here. So we can see the gender empowerment since so long in our culture, in our society. And today we will be talking or discussing one step further, what we have seen earlier and what is the contemporary relevance now. I have been allotted the time till 1:45, so I will do my justice. My request to you all is कि अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्वेरीज है तो प्लीज आप उसे लिख के रखिए एट द एंड. प्रीति मैम विल सर्टेनली गिव अस सम टाइम टू डिस्कस द क्वेरीज. तो उस वक्त हम उसे डिटेल में करेंगे, बिकॉज आई एम I am joining this meet with this mobile screen, so I don't know whether I will be able to see your queries in between. So please save them for the end. ये जो टॉपिक है हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, इस पे जो सबसे पहला एस्पेक्ट हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल बायोलॉजिकल टर्म दैट इज सेक्स एंड जेंडर. देखो क्या है ना कि जब भी हम सेक्स के बारे में बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट मेल फीमेल, एंड नाउ वी आर वेरी ओपन अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग ट्रांसजेंडर्स लाइक LGBTQ others. But when we talk of gender is altogether बिगर डायमेंशन, बड़ा टर्म है ये. जैसे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, ये बहुत ही साइंटिफिक और हार्मोन्स और क्रोमोसोम बेस टर्मिनोलॉजीज है. बट जब हम उसको जेंडर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम उसमें बहुत ज्यादा सोशल डायमेंशंस को ऐड करते हैं. Right from your birth till your death and आफ्टर डेथ एज वेल, ये सारे जो सोशल डायमेंशंस है ये हमारे साथ अटैच होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, what name you will have, what religion you will have, what practices you will follow, what profession you will follow, ये सब क्या है ना, हमारा सोशल डायमेंशन का पार्ट है. एंड वी हैव सीन दैट एज a part of our life. Like my name is part of my life, my beliefs, my spiritual aspects, my cultural practices, my traditions, they all are part of an individual. और इससे ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लड़की की शादी हो गई तो नाम चेंज करना है, इट्स अ जनरल प्रैक्टिस वी हैव डेवलप, कल्चरल प्रैक्टिस वी हैव डेवलप. तो ये क्या है ना, सोशल डिमेंशन है. फॉर एग्जाम्पल पुटिंग अ बिंदी ऑन अ हेड, इट्स अ सोशल प्रैक्टिस, सोशल डिमेंशन हमने ऐड किया है कि शादी के बाद लड़कियों ने ये ऐसे रहना है. तो what has happened कि automatically, like very organically, you can say कि we have elevated this civilization from a very scientific
मेल फीमेल ट्रांसजेंडर काइंड ऑफ थिंग टू अ वेरी सोशल डायमेंशन बेस, जहां पे मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, ये सब क्या है ना, सोसाइटी या सोशल डायमेंशंस बीइंग लाइक बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर जेंडर, वो डिसाइड होता है। और इसी से क्या होता है ना, फिर इस जैसे इसको हम एक और चीज में बात कर सकते हैं कि हम एक सोशल डिवाइड क्रिएट करते हैं कि ये हम कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते, या ये हमने करना चाहिए या ये हमने नहीं करना चाहिए। तो इसी सोशल डायमेंशंस को लेके what happened that we determine the behaviors and actions. For example, another good example I will give you, like whenever we go, आप किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम देख लीजिए, आपने देखा होगा जहाँ पे बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, प्लास्टर करने का काम कौन करता है, मेल और फीमेल, एनीबडी? मेल। मेल। मेल करता है। अच्छा, और ईंटें उठा के लाने का काम कौन करता है, लेडीज, वुमेन। लेडीज भी रहते हैं। women। ठीक मेल है, एंड अब फीमेल दोनों। लेडीज काम करती है। लेडीज, मेल या फीमेल दोनों, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन कि इट इज द फीमेल्स। ओके, ना ये जो दोनों है, ये दोनों बिहेवियर और एक्शन है एक पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। अब जब हम कहते हैं कि मेल इज देयर इन प्लास्टरिंग, व्हाई सो, इसका ये मतलब होता है क्या कि फीमेल को प्लास्टर करना नहीं आता? या इसका अलग वर्जन अगर हम देखेंगे तो वो ये है कि वो जो काम है वो थोड़ा स्किल बेस्ड काम है, प्लास्टर करना ऐसा कुछ इजी काम नहीं है, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल। तो वो स्किल बेस्ड काम है, इसीलिए पहले से हमने जो उसमें एड ऑन कर लिया वो ये किया कि ये स्किल बेस्ड वर्क है तो ये एक पर्टिकुलर जेंडर करेगा। और जहां पे आपको मैन्युअल वर्क लगता है कि इट रिक्वायर्स एफर्ट बट देयर इज हार्डली रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्किल, सो ऑटोमेटिकली हमने वो डाइवर्ट कर दिया है दूसरे जेंडर को। ऐसा आपको काफी इसमें देखने को मिलेगा। एक और छोटा सा एक्सरसाइज हम करते हैं बिफोर वी मूव फर्दर। आप सबको, अब आप में से कितने यहाँ पे साक्षात हमारे साथ है आई डोंट नो, बट जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आप सबको एक छोटा सा काम करना है कि जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड, शांति से अपनी आंखों को बंद करिए और जो मैं बोल रही हूँ उसे आप थोड़ा सा सोचिए। आपके स्कूल में सबसे फेवरेट आपके मैथ्स के टीचर कौन है जब आप स्कूल में थे? दूसरी बात, आपके सबसे फेवरेट इंग्लिश टीचर जब आप स्कूल में थे? तीसरी बात, आपको मैंने कह दिया है कि आज आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं एंड यू वांट टू टेक फाइनेंशियल एडवाइस कि आपको ये पैसे किस तरीके से खर्च करने हैं, तो हम किसकी एडवाइस लेंगे? और चौथा फाइनल मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा सोचिए कि जिसके बारे में आपको ऐसे लगता है कि मुझे आने वाले मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा ध्यान इस पर्टिकुलर व्यक्ति का रखना पड़ेगा, वो कौन है? आर वी डन? कर लिया हम सब ने, सोच लिया? यस मैम। नो? ओके। यस मैम। हाउ मेनी ऑफ यू विल Yes, टेल ma'am. मी कि जब मैंने आपको बोला कि सबसे फेवरेट मैथ्स के टीचर, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे कहेंगे कि वो मेल टीचर थे, मैथ्स Yes, के ma'am. सर है? यस मैम। मैथ्स के सर है कि नहीं? Yes. इंग्लिश की मैम है, इंग्लिश की Yes. मैम है, और बहुत Yes. ब्यूटीफुल मैम होती है स्कूल्स में, ऐसा हमने सोचा है, राइट? True. Yes. जी है मैम, ना? जी मैम। और हम सब True, फैकल्टी ma'am. डेवलपमेंट, हम अलग अलग जोन्स के लोग हैं, हम एक ही जोन में नहीं है, ठीक है? जैसे आप आरटीएमएनयू से हो सकता है, नहीं भी हो सकते, हम अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांत से जुड़े हुए लोग हैं, बट हमारा जो बिहेवियर और एक्शन का डिवीजन है वो सेम है। अब जब मैं आपको कहती हूँ कि 10 लाख रुपए खर्चा करना है, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि मैं मेरे फादर, मेरे हस्बैंड या मेरे भाई या मेरे किसी मेल फ्रेंड के साथ डिस्कस करूंगा? Is there मैंने सोचा है। Yes. anyone? Yes, sir, male friend. Yes. यस मैम के लिए। भाई के साथ ना, इज देयर एनीवन इन दिस ग्रुप जिसने सोचा कि मैं मेरी किसी से पूछूंगा, मेरी बहन से पूछूंगा या माँ से पूछूंगा? एनीवन? No, ma'am. यस मैम। No, ma'am. एक दो लोग हैं, एक्सेप्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्या नहीं, हो रहा है ना, I देखो आप, generally talk with my aunt.
you turn to your aunt. In such kind of So that is a good yeah, part, you know. हाँ, तो आप अगर हम ये डिवाइड भी देखोगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 60 to 70% ऑफ दिस क्लास इज रिलाइंग ऑन सम मेल काउंटर पार्ट जो उनको बताएंगे, एंड देन 30 to 40% फीमेल्स के तरफ जा रहे हैं. तो ये एक डिटरमाइन करता है आपका बिहेवियर और एक्शन को कि जहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशंस या डिसीजंस लेने हैं तो हम थोड़ा रिलायबिलिटी फैक्टर अदर जेंडर्स के तरफ डालते हैं. और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा ध्यान मेरी माँ का, मेरी सिस्टर का, या मेरी वाइफ का, या मेरी बेटी का रखना पड़ेगा. Yes, ma'am. कंपैरेटिवली द मेल काउंटर पार्ट्स इन द फैमिली. Yes. ये क्यों लगता है? एक तो हमको ऐसे लगता है कि वो लोग थोड़े ज्यादा वल्नरेबल है और शायद वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि आने वाले टाइम में वो खुद का ध्यान खुद रख पाए. सो देखो, इसमें कुछ गलत नहीं है, जो भी हम सोच रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं है. द रीजन इज कि दिस इज द बिहेवियर एंड एक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड, यू नो, बाय दिस जेंडर बेस्ड नॉर्म. सोशल डायमेंशन जो है ये उसने किया है, और आप और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं है. वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो वी शुड नॉट हेजिटेट कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ. इट इज अ पार्ट ऑफ योर सोशल अपब्रिंगिंग. हमारा जो कल्चर है, हमारे जो फैमिली प्रैक्टिसेस है, हमारा जो एक वे ऑफ थिंकिंग हमने डेवलप किया, ये उसी का पार्ट एंड पार्सल है. बट द थिंग इज कि ये डिवाइड बन चुका है, इसमें मेरा और आपका कोई रोल नहीं है. ये डिवाइड बन चुका है, एंड इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दिस, तो हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा सोशल कंस्ट्रक्ट वहां पे आइडेंटिफाई करना है जो कि रेगुलर कंस्ट्रक्ट के बियॉन्ड हो. जैसे मैंने आपको कहा, आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, यू नो, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया है कि उस सोशल कंस्ट्रक्ट से वो बाहर निकली थी. कैसे बाहर निकली थी? ऑफ कोर्स उनके हस्बैंड ने उनको साथ दिया था, बट एट द सेम टाइम उन्होंने भी वो विल और डेडिकेशन दिखाया था कि मुझे इससे बाहर जाना है और मुझे देखना है कि ये जो डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और सोशल बिहेवियर बन चुके हैं कि सिर्फ मेल ही एजुकेशन लेंगे और फीमेल नहीं लेंगे, तो उसके बियॉन्ड मुझे जाना है. तो क्या होता है ना कि जब हम किसी सोशल कंस्ट्रक्ट का पार्ट रहते हैं सो थिंग्स गो ओके, बट जहां पे हम किसी सोशल कंस्ट्रक्ट के बियॉन्ड जाना शुरू होता है, देन वी नीड टू रियली इवेल्युएट कि ये जो चल रही है प्रथाएं, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, शायद वो सही भी हो सकती है, शायद वो गलत भी हो सकती है. ठीक है, तो इसका एनालिसिस हमें करना होता है. जहां पे क्या होता है ना, जेंडर वर्ड बहुत प्रोमिनेंट आ जाता है. सोशल डायमेंशन, बिहेवियर, एक्शन, कंस्ट्रक्ट तक तो हम मेल फीमेल के साथ चलते हैं, बट जहां पे हम यू नो उस कंस्ट्रक्ट के बियॉन्ड जाके कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, यू नो, रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस अगर हम जाते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट्स के आगे जाके, तो वहां पे जेंडर क्या हो जाता है ना, बहुत प्रोमिनेंट होता है कि ये काम ये कर सकते हैं, कि ये काम ये नहीं कर सकते. नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं करना चाहिए. तो क्या होता है ना, हमारे कैसे सोशल बिल्ड्स तैयार हो जाते हैं, और जहां पे ये सोशल बिल्ड्स एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं उसको हम कहते हैं सेपरेशन थीसिस. और सेपरेशन थीसिस हमें क्या बताता है? सेपरेशन थीसिस हमें बताता है कि नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्टर लाइक आपका जो सेक्स है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, उसके वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल डिमेंशन, सोशल बिहेवियर्स एंड एक्शन, वी हैव आइडेंटिफाइड अ सेपरेशन थीसिस. और ये सेपरेशन थीसिस आपको कहता है कि आपने ये काम नहीं करना चाहिए. अगेन अ वेरी कॉमन सिंपल एग्जांपल, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है घर जमाए. आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बुरा है, बट समाज सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इफ अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड, देन शी शुड हैप्पीली लिव विथ हर हस्बैंड इन हिज हाउस या सेपरेट हाउस, जैसे भी होगा. बट अगर वो उल्टा हो गया, वाइस वर्सा हो गया, तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है अभी तक. यू नो, we don't like we are not very welcoming, you know. हम क्या करते हैं, हम उस आदमी का रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं कि हमको लगता है कि अरे नहीं 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 इसको, यू नो, ऐसा नहीं है. ये क्या हो गया ना, ये सेपरेशन थीसिस हो गया. हमने अपने आप में ये डिसाइड कर लिया कि ये तो जिम्मेदारी उनकी है, हमारी थोड़ी ना है, ये तो उनके यहाँ पे ही होना चाहिए. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सेपरेशन थीसिस में आ जाती है.
और सेपरेशन थीसिस से क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको प्लास्टरिंग का एग्जांपल दिया, अपने आप ये सेपरेशन थीसिस ने इस तरीके से काम करना शुरू किया। देखो मैं 1000-2000 साल उससे भी पहले की बात कर रही हूँ, कि हमने धीरे धीरे ये जो सिविलाइजेशन डेवलप किया है, तो इस सेपरेशन थीसिस के हिसाब से धीरे धीरे क्या हो गया ना, हमने एक पावर डायनामिक्स क्रिएट कर लिया कि ऑटोमेटिकली वी अंडरस्टूड that there is one gender which is very powerful and the other genders are not so powerful. दो बोलने के लिए तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि हमारे पास इतने देवी देवताएं हैं, बहुत सारी देवियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल पावर डायनामिक्स वी हैव सीन दैट many a times the male gender is very powerful and very much superior and then it is followed by the female gender. ये हो गया है, ये सिविलाइजेशन में हो गया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। इसमें आपका और मेरा कोई रोल नहीं है, ये अपने आप हो गया है। बट ये सब होते समय क्या हुआ ना कि हमने एक जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम छोटा एग्जाम्पल है, जब भी हम कहीं पे फॉर्म भरते, लेट अस से हम एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं या आपने एफडीपी का फॉर्म भरा है, व्हाटएवर, somebody is asking you write your gender, male, female, transgender, not interested in telling, आजकल ये नया शुरू हो गया, क्यों चाहिए? See, I am doing an FDP, it hardly matters whether I am a male or female or a transgender, but हम उस सोशल कंस्ट्रक्ट का पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, हम ये इंफॉर्मेशन बताते हैं, शेयर करते हैं एंड वी डू इट अकॉर्डिंगली, ओके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सोसाइटी में क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे दो रास्ते आते हैं, एक तो क्या है ना कि हम इस कंस्ट्रक्ट को पूरा खत्म कर दे एंड देन क्रिएट अ न्यू सोसाइटी, वो जो कि बहुत ही हाइपोथेटिकल लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो वैसा कभी होना चाहिए बिकॉज उसके अपने अलग ड्रॉबैक्स है। बट जो दूसरा रास्ता हमारे पास है वो ये है जिसको हम कहते हैं कि इक्वालिटी नहीं, इक्विटी होना चाहिए, कि हमारे जो नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट है हर एक जेंडर का, मेल के भी अपने कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, उन्हें भी बहुत बार हम आजकल एक रेडियो पे मैं बहुत ज्यादा सुन रही हूँ, आपने भी कुछ सुना होगा, देयर इज दिस पंकज त्रिपाठी का एक शो आना शुरू हो गया है कि मेल को स्टीरियोटाइप में रख दिया है कि वो कोई इमोशन नहीं दिखा सकते, या वो कभी वल्नरेबल नहीं हो सकते, या वो कभी दुख व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये एक स्टीरियोटाइप हमने क्रिएट कर दिया। तो उनके भी अपने शॉर्टकमिंग्स है एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू नेग्लेक्ट द ट्रांसजेंडर एलिमेंट, उनको तो हमने जानना ही अभी शुरू किया कि अभी हम उनको समाज का पार्ट समझने लगे, अब तक तो हम उन्हें पार्ट ही नहीं कंसिडर कर रहे थे, तो दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस सोशल डायमेंशंस, कंस्ट्रक्ट, सेपरेशन थीसिस एंड पावर डायनामिक्स, हमने जेंडर बेस्ड नोशंस आइडेंटिफाई कर लिए। बट अब क्या होता है ना कि इन जेंडर बेस्ड नोशंस के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स है जो हमें समझना है। अब सबसे पहली बात, ये तो पार्ट ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि जेंडर का जो डेफिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया है। तो आप सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना विजनरी होगा कि 1948 में 49 में हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि हमें कोई भी सोशल कंस्ट्रक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रखना है, बट हमें ये कहना है कि वहां पे वो एक पर्सन है, जीता जागता इंसान, नॉट की फीमेल, नॉट की मेल, नॉट की ट्रांसजेंडर, और वो जो जीता जागता इंसान है वो कौन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जो बहुत विजनरी है उसमें ये नहीं है। बट अभी क्या होता है ना, बिकॉज वी नीड टू क्लासिफाई इट, बहुत सारी चीजें जो मैंने कहा ना, इक्विटी, इक्वालिटी, आने वाले प्रेजेंटेशन में मैं वो डिस्कशन करने वाली हूँ, तो हमें कहीं कहीं पे जेंडर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जेंडर बेस, जैसे मैटरनिटी लीव है, जेंडर बेस हमको आइडेंटिफाई करना पड़ा कि उन्हें चाहिए, ये लीव सिर्फ उन्हीं को मिलनी चाहिए और 6 महीना मिलनी चाहिए, ओके, जिसमें अभी पैटर्निटी लीव भी ऐड हो गया है 1 मंथ का। तो इस वजह से क्या है ना, अभी हम जेंडर को डिफाइन करने लगे हैं। So what is the definition? It is a social construct, norms and ideologies which determine the behavior and actions of men and female. मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ। हमारी कंट्री में बहुत सालों तक, यानी टिल द जजमेंट ऑफ नौतेज सिंह जोहर, जो कि 2017 में आया है, तब तक बाइनरी जेंडर सिस्टम चलता था। बट जब से सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ 377 किया, हमने नॉन बाइनरी जेंडर सिस्टम भी शुरू कर दिया। नॉन बाइनरी यानी मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर एंड
नॉट इंटरेस्टेड इन सेइंग। उसके पहले हमारे पास सिर्फ मेल फीमेल था। इसका भी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे रेलवे रिजर्वेशन, मेल और फीमेल ही होता था, उसमें फॉर्म में जगह ही नहीं थी ट्रांसजेंडर की। और फिर हम देखते थे कि ट्रांसजेंडर आते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं एंड दे स्टार्ट बेगिंग, दे स्टार्ट आस्किंग मनी, और फिर हम कहते थे कि ये क्यों आ गए? अरे उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन ही नहीं किया है तो वो करेंगे क्या? उनके लिए टिकट बुक करते समय वो दिया ही नहीं है प्रोविजन। बट इसके बारे में हमको बहुत साल लगे सोचने के लिए कि हमें उन्हें इंक्लूड करना है। सो क्या हो रहा है ना, बेसिकली जो डेफिनेशन है साइंस का, दैट इज मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, वो बहुत डिफरेंट है जो हमारे सोशल साइंस का जेंडर वाला कॉन्सेप्ट है। ये दोनों भी एक साथ बहुत डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है। प्रोबेबली साइंटिफिक डेफिनेशन इज वेरी स्मॉल, बट सोशल साइंस में जो जेंडर यूज करते हैं दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज वाई हमें उनके जो सेंसिटिव एस्पेक्ट है उन्हें समझना चाहिए। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन की जरूरत क्या है? देखिए सिंपल सी बात है कि एवरी इंडिविजुअल, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले हैं, पर्टिकुलरली इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सेसिबिलिटी और एम्पावरमेंट पे, मैं इन चारों चीजों पे इसलिए फोर्स करती हूँ क्योंकि हमारा जो जेंडर ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, वो इन चारों पैरामीटर्स पे वेरीफाई होता है। और बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है, शायद मैंने अगले इसमें मेंशन भी किया है कि हमारी जो परिस्थिति है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि जेंडर ग्लोबल इंडेक्स जो है 23 का, अभी 24 का भी आ जाएगा विद इन अ मंथ, हम 127th रैंक पे है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो ये कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है टू बी लाइक वेरी क्लियर अबाउट इट। हम क्लेम करते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाले हैं, हम 5 ट्रिलियन क्रॉस करने वाले हैं, हम बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है, और हम कितने पानी में है ये आप देख सकते हो इस इंडेक्स से। और इसके जो पैरामीटर्स है वो सीधे सीधे आपको बताए गए हैं कि वो ये पैरामीटर्स है: इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सेसिबिलिटी और एम्पावरमेंट। और इन चारों ही इसमें हम बहुत पीछे हैं। अब इसके पीछे अलग अलग कारण है। सी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दिए हैं, बट इन राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन होना या इसका एग्जीक्यूशन होना या इनको उन सारे लोगों तक पहुंचाना और उस तरीके से पहुंचाना जिस स्पिरिट से ये चारों क्वेश्चंस को ऐड किया था, इसमें बहुत फर्क है। अब इसका एक और सिंपल उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमने अभी देखा है कि विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, नारी शक्ति अधिनियम वगैरह हमने बनाया है। आप में से कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि ये इम्प्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? एनीवन? ये इम्प्लीमेंट हो गए क्या? नारी शक्ति अधिनियम जो बनाए हैं, शुरू हो गया वुमेन्स रिजर्वेशन वाला जो लेटेस्ट एक्ट 2023 में जो आया है? एनीबडी? Am I audible? Yeah, audible, madam, but no idea. Audible. नो आइडिया। हाँ, ओके, नो आइडिया। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताती हूँ। ये इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है और ये हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का कारण है कि इसका जो बेसिक रैशनल है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सेंसस हो, सेंसस में भी जेंडर बेस्ड सेंसस हो। और जब जेंडर बेस्ड सेंसस हमारे पास आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई करेंगे कि चलो नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम क्या करेंगे, हम उसको विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी करेंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को पूछने वाले हैं कि भाई आप तैयार हो क्या आपकी जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको फीमेल कॉन्स्टिट्यूएंसी करने में? और अगर वो लोग हाँ बोलेंगे, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू होगा कि कितना और कब कब वहां पे होगा। यानी अगर हम इन टोटलिटी भी देखें तो आज से कम 10 साल इस पूरी प्रोसेस में लगेंगे और 10 साल बाद हम ये कह सकेंगे कि हाँ ये अधिनियम जो है लागू हो गया। बट व्हाट हैज हैपेंड, हम क्या करते हैं ना, हम उस हाइप में चले जाते हैं, अरे रे रे ये तो वुमेन्स के लिए ऐसे बना दिया वैसे बना दिया। बट द थिंग इज दैट इज नॉट द रियलिटी। यू सी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं। अनदर गुड एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव यू ऑल, एंड ऑफकोर्स वॉट एवर माई व्यूज आर दे आर एकेडमिक व्यूज, प्लीज उसे आप पॉलिटिकल मत समझिए, बट बिकॉज आई बिलोंग टू लॉ ऑफ इटर्निटी, I happen to understand, everything from legal point of view. The very recent example is the
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाड़की बहन योजना। आप में से जो महाराष्ट्र के लोग होंगे उन्हें तो पता होगा ये, बट इफ देर आर एनी पार्टिसिपेंट दोज हु आर नॉट फ्रॉम महाराष्ट्र, देर वॉज दिस स्कीम, इलेक्शन के 6 महीना पहले ये स्कीम शुरू हो गई थी, जहाँ पे लाड़की बहन यानी सिस्टर, इट्स लाइक कि हमारी प्यारी बहना के लिए हम ये एक स्कीम शुरू कर रहे हैं, जिसमें देर वॉज सम अलोकेशन ऑफ मनी, कि उनको मंथली 1500 रुपए और कुछ चीजें वगैरह मिलना शुरू होती है। नो दिस वॉज देयर फॉर लास्ट 6 months एग्जैक्टली इलेक्शन के पहले, एंड देन इट विल कंटिन्यू फॉर अनदर few years, I don't know till how long. But do you think, ऑनेस्ट व्यू चाहिए मुझे, कि मैं किसी फीमेल को महीने का 1500 रुपए देके उसका एम्पावरमेंट कर रही हूँ क्या, कि आई एम मेकिंग हर डिपेंडेंट, रादर देन माई व्यू इज कि 1500 देने के बजाय आप उसको 2500 दो, बट मेक श्योर कि उसको कोई काम, जैसे कुछ वो अपने स्किल सीख सके या कुछ अपने पैरों पे कर सके, सो दैट फॉर लॉन्ग रन शी विल गेट द लाइवलीहुड, रादर देन गिविंग हर मनी फॉर सम टाइम, जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम उसका डिपेंडेंसी फैक्टर हाई कर रहे हैं। अब हम जितना डिपेंडेंसी फैक्टर हाई करेंगे उतना एम्पावरमेंट लो होगा। इट्स सिंपल कैलकुलेशन, इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इक्वालिटी से एकदम दूर जा रहे हैं। हमने एम्पावर्ड यूथ को छोड़ दिया, यानी हमने बॉयज को छोड़ दिया, हम सिर्फ गर्ल्स पे फोकस कर रहे हैं, लड़की बहन, नो लड़का ब्रदर। सो ऑलरेडी हम एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर से हम उनको एम्पावरमेंट नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंसी फैक्टर हाई कर रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी लो हो जाता है। और जहां पे भी मैंने कहा ना कि जब भी जहां पे भी जिस भी घर में विमेन एम्पावरमेंट लेस है, इट इज अ नोन फैक्ट दैट उनका कंट्रीब्यूशन इन द डिसीजन मेकिंग इज लेस। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से एक्सक्लूड करते हैं, एक्सेप्शंस है, बट हम उनको कितना फ्रीडम दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग पे, ये आपको और मुझे अच्छी से पता है। So what is happening कि just because of these gender biasness हम क्या कर रहे हैं, हम एक unequal power relationship across economic, political, social और cultural dimensions पे create करते हैं, जिसका पूरा पूरा impact किस पे आता है, इस global gender index पे आया है। सो 146 में से 127th रैंक आना, इट इज वर्स्ट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे प्राइम मिनिस्टर क्या, प्रेसिडेंट क्या, और कितने तो बड़े बड़े पोजीशंस पे फीमेल रह चुकी है, उसके बाद भी हमारा ये सिचुएशन है। सो दिस इज नॉट गुड, वी ऑल नीड टू इंट्रोस्पेक्ट दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जेंडर जो है, अभी जो हम ये जेंडर सेंसिटाइजेशन पढ़ रहे हैं, हम इसको एक 3 फैक्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। एक हम पहले देखेंगे विमेन से रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं, फिर हम देखेंगे मेन से रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं, फिर हम देखेंगे ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, और उसको फिर हम समझेंगे कि सेंसिटिव हमें कहाँ पे होना है, किस तरीके से होना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि देयर इज अ सोशल डायमेंशन, ओके, सोशल बाइफर्गेशन है। ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया कि जेंडर का डेफिनेशन ही नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतने सारे टूल्स दिए हैं बाय लाइक मेकिंग देम एज अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पे हम इक्वालिटी और इक्विटी विथ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसे होना चाहिए, इक्वालिटी अमंग्स द इक्वल, नॉन इक्वल्स को हम इक्वल प्लेटफॉर्म में नहीं रख सकते हैं। एंड दैट इज वाई जब भी हम क्लॉज 3 के पढ़ते हैं, जैसे 15 क्लॉज 3 यहाँ पे मैंने लिखा है, अब देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अभी क्या है ना कि ये जो 15(3) है, इसका पूरा पूरा उपयोग लाड़की बहन को जस्टिफाई करने में किया है कि लाड़की बहन योजना क्या है, स्टेट का इनिशिएटिव है विमेन को एम्पावर करने के लिए, and that is how it got justified. Otherwise it is like cash for votes, but then it got justified because स्टेट ने वो प्रोविजन दिया है। अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, बट जैसे हम कहते हैं कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जब भी आएगा, वो क्या होगा ना, वो सही मायने में 15(3) का क्या होगा, वर्दी इम्प्लीमेंटेशन और वर्दी एग्जीक्यूशन होगा। या फिर जो भी हमने 33% रिजर्वेशन देखा है वुमेन्स के लिए, या फॉर दैट मैटर
जहां जहां पे जैसे विमेन्स को फ्री एजुकेशन या फ्री स्कॉलरशिप्स जो स्कॉलरशिप्स वगैरह जो आई है, सो ये सारी चीजें क्या है ना, ये पार्ट ऑफ 53 है कि जहाँ पे स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट यानी गवर्नमेंट्स क्या करती है ना कि वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है जिसके थ्रू विमेन को काम मिलता है, उनकी पढ़ाई होती है, उनका एक एम्पावरमेंट होता है, एंड देन दे कंट्रीब्यूट इनटू द मेकिंग ऑफ द नेशन। और इसके लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यानी ऑन वन हैंड वी हैव आर्टिकल 14 जो कहता है कि इक्वल रखिए, बट एट द सेम टाइम वी हैव आर्टिकल 15(3) जो कहता है कि अगर कोई इक्वल नहीं है तो उसको अगर आपको इक्वल लाना है या उसको अगर उस इक्वालिटी के रेंज तक लाना है, तो अगर कुछ एलिवेट करना पड़े यानी कुछ आपको और उन्हें प्रोविजन या एक कुछ जोर लगाना पड़े तो वो आप करिए, एंड देन यू मेक श्योर कि वो इक्वल इस पे हो। और जब ये इक्वालिटी आती है तब अपने आप इक्वालिटी बिफोर लॉ सबसिस्ट करता है। ठीक है, और ये प्रोविजन हमारे यहाँ 1949 यानी 1950 जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से ये प्रोविजन हमारे पास है। ठीक है, सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटी है हम सभी का आर्टिकल 51(e) में जो कहता है कि हमें हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रखना है, जिसमें हम क्या करेंगे, मेन पार्ट है कि जो भी डिरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ विमेन है, इसे हम सभी को मिलके खत्म करना है। ओके, तो जेंडर के लिए ये बहुत क्लैरिफिकेशन हमको दिया है, और इसी आधार पे हम इन तीनों को इवैल्यूएट करेंगे, इन तीनों एस्पेक्ट्स को कि विमेन, मेन और ट्रांसजेंडर के लिए हम कैसे रहते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विमेन और जेंडर के लिए ऑलरेडी हम ग्लोबल इंडेक्स में कम है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डेटा मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ कि ये जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट है 2022 का, अभी आने वाले 1-2 महीने में 2023 का भी रिपोर्ट रिलीज हो जाएगा, और इतने केसेस अगेंस्ट रेप, सिर्फ रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। और आपको इंडियन कल्चर और इंडियन फैमिलीज के बारे में पता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते क्योंकि फैमिली का बदनामी हो जाएगा। एंड दिस लाइक 4.5 लाख के करीब जो है रिपोर्टेड केसेस है, और एज ए लॉ पर्सन मैं आपको कह सकती हूँ कि इसको मल्टीप्लाइड बाय कम से कम 5 करिए तो क्या होगा, हमको शायद कुछ नियर बाय अप्रोप्रिएट नंबर मिलेगा कि एक्चुअली में इतने केसेस एक साल में हुए हैं। तो अगर ये हमारा विमेन सेफ्टी है, ये हमारा ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, और इतने सेक्सुअल हैरेसमेंट्स अगर हमारे यहाँ पे होते हैं, तो आप सोचिए कि विमेन कितनी वल्नरेबल है। तो दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, नो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि देयर वाज ऑलवेज इन एक्सप्लॉइटेशन, देयर इज ऑलवेज एन एक्सप्लॉइटेशन, मार्जिनलाइजेशन। अब इसका एक कॉर्पोरेट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आजकल कॉर्पोरेट वाले भी कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ जेंडर रेशियो ऐसा है वैसा है, हम वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बट सी विमेन वर्किंग इन क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 उसका नंबर ज्यादा होना और विमेन वर्किंग इन क्लास 1 लेस होना इज मार्जिनलाइजेशन। कब होना चाहिए कि चारों जगह पे 1, 2, 3, 4 सारे क्लासेस में अगर विमेन है तब इट मेक्स, नहीं तो वो क्या करते हैं, फ्रेशर विमेन को ज्यादा ले लेते हैं कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, बट हायर लेवल पे कौन है, इट इज ऑलवेज द मेन। ऑफ कोर्स आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनफैक्ट अभी भी शेयर कर सकती हूँ दिस नंबर लोकसभा का जो है 2024 का, out of 545 you see only 74 are female, 466 are men, and then what we are claiming कि अरे नहीं हम तो बहुत विमेन के प्रति हम सब लड़की लड़की करते रहते हैं, but what is actually happening, we are already marginalized। एंड इसका ये भी मतलब नहीं कि विमेन कंटेस्ट नहीं कर रही थी, शायद हो सकता है 76 जीत के आए तो प्रोबेबली 250 विमेन्स ने कंटेस्ट किया होगा, पर नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्टेंस लेवल नहीं दिखा पाते या कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखा पाते, या जो भी हमारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है उसके साथ वो मैच नहीं करते, सो ऑटोमेटिकली मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। एंड देन वी हैव सीन विमेन आर पावरलेस, मेनी अ टाइम्स,
पेपर आप खोलिए, कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए, एवरी डे यू विल फाइंड दैट सम और द अदर न्यूज इज देयर कि जहाँ पे women have been raped, और कुछ कुछ जगह पे तो हम देखते हैं कि झाड़ से टंगा दिया है और जला दिया है एंड काट दिया, हॉरिफाइंग। सो यू कैन सी द पावरलेसनेस। एंड अलग टाइप का अगर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ somebody's वाइफ इज वर्किंग, आप में से बहुत लोग हो गए या जो फीमेल्स है जो आप वर्क करते हो, मुझे सच्ची सच्ची बताना कि आपको पता है क्या कि आपका रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? बिल्कुल बहुत ही कम लेडीज होंगी जिनको पता होगा कि इनकम टैक्स मेरा कैसे फाइल करना है या मेरे रिफंड्स कैसे लेने के हैं। कुछ कुछ तो मैंने देखा है कि फीमेल तो शेयर देयर बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट विथ हस्बैंड, की हमको नहीं पता ये पैसे का कैसे ट्रांजैक्शन होता है। they are working, Yes, they ma'am. are earning money, but they do not have this financial knowledge, और हम वहां पे पावरलेस हो जाते हैं। on one hand, like you are a professor, but on the other hand you are powerless because you don't know how to do that thing. So this happens. और इसके वजह से क्या है ना कि हम जेंडर के बारे में जब भी बात करते हैं, पर्टिकुलरली फीमेल जेंडर के बारे में, तो हम देखते हैं कि सेपरेशन थीसिस यहाँ पे हमें पावरलेस करता है। एंड देन ऑफ कोर्स द कल्चरल इंपीरियलिज्म, कल्चर ने ऐसे बताया है कि ऐसे ही होना चाहिए, इसका वैसा वर्षा हुआ तो society is not ready to accept, and there are thousands of examples, thousands। खाना कौन बनाएगा घर में? घर में खाना फीमेल बनाएगी, बट होटल में शेफ कौन होगा? वो मेल ही होगा। So it's cultural imperialism, this is how we work, कि जहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि सबसे बेस्ट खाना हम किसके हाथ का खाते हैं? माँ के हाथ का, दैट इज बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। बट जब हम 5,000 रुपए खर्चा करना है तो हम होटल में शेफ के हाथ से खाएंगे, और वो शेफ 90% ऑफ टाइम्स क्या होता है? मेल होता है। तो ये कल्चरल इम्पेरियलिज्म है हमारा। एंड ऑफ कोर्स वायलेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये तो मैं सिर्फ रेप का डेटा शेयर करी हूँ। इसके अलावा जो क्राइम है, मर्डर्स है, ब्रुटेलिटीज है, abuses है, वो तो दैट तो आई एम नॉट इवन काउंटिंग। सो दैट डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह वगैरह, तो ये सब बहुत हाई लेवल पे है। और इन सभी के वजह से क्या है ना आणि कि जो सगळ्यांनी विमेन आपला टॉपिक रिपीट नाही व्हावं म्हणून सांगतो तुम्ही। प्लीज किसी का तो माइक येस ऑन मॅडम, है? मी म्यूट केलं त्यांना. प्लीज कंटिन्यू. Okay, okay, fine, fine. So what is happening here? This particular violence, cultural imperialism, powerlessness, marginalization, and exploitation, all these contributes in making women more and more vulnerable every day. ठीक है? और यहाँ पे हम सबको काम करना है कि ऐसा ना हो। नो, इसके लिए जो सबसे पहला एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज द इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन। अगेन 30 सेकेंड्स, आप ये सारे पिक्चर्स जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर किए हैं, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए सारे पिक्चर्स। 30 seconds टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि इन सभी में कॉमन क्या चीज है? ये सारे 6 पिक्चर्स में कॉमन क्या है? एनीवन? All are human beings. ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हेरी गुड। आणि सर्व याच्यामध्ये फिमेल्स आहेत. फीमेल्स आहे, करेक्ट, एकदम बरोबर। आता मला All are कोणी women. सांगू शकेल का? हा, आता मला कोणी सांगेल का ह्या पिक्चर मध्ये डिफरंट काय? व्हॉट इज द डिफरन्स? It includes culture. It includes certain stereotypes that the women must follow or need to follow as per their cultural background, as well as one picture shows their empowerment also. They belong to different economic backgrounds. एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। और और it's डिफरेंट about इकोनॉमिक religion. बैकग्राउंड होने के कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है। बरोबर, एकदम करेक्ट। इवन उनका और जो कोई विजन है एज वो ग्रुप, भी अलग है, उनका विजन भी अलग है।
ट्राइबल से आता है, किसी का टेक्नोक्रेटिक आ रहा है, ये सब डिफरेंट सिनेरियो दिख रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। सो अभी हम इन पिक्चर्स को देख के समझ चुके हैं कि ये सारी महिलाएं हैं जो सेम पार्ट है, बट ये महिला होने के साथ साथ ये सब अलग अलग है, सब अपने अपने डोमेन में अलग अलग तरीके से कल्चर हो, चाहे उनका एम्पावरमेंट हो, चाहे उनका वे ऑफ लिविंग हो, चाहे उनका लाइफस्टाइल हो, ये सब अलग अलग है, राइट। यानी कुछ इनमें सिमिलैरिटीज है, कुछ इसमें डिससिमिलैरिटीज है। अब होता क्या है ना कि ये जो इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि विमेन्स के लिए रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन एडमिशन में लड़कियों को हमको देना ही है, या कुछ सीट्स जो है गर्ल्स के लिए हम रिजर्व करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब हम विमेन के बारे में बात कर रहे हैं, उसी में इतने डिस्क्रिमिनेशन से इंटरनली कि अगर एक हिंदू विमेन है, यू कैन नॉट कंपेयर दैट विद अ मुस्लिम विमेन। इफ देयर इज अ मुस्लिम विमेन, यू कैन नॉट कंपेयर हर विद द डिसेबल विमेन। अगर डिसेबल विमेन है तो यू कैन नॉट कंपेयर हर विद अ ट्राइबल विमेन, और ट्राइबल है तो जो पढ़ी लिखी विमेन है आप उसके साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। एंड इफ समबडी इज बिलोंगिंग टू सम like some group or some community under marginalized segment, तो हम उसके साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते। बट होता क्या है ना, विमेन के लिए अरे पर विमेन में ही इतना डाइवर्सिटी है। एंड व्हाट इज द नीड इज कि जिसकी जो जरूरत है आप उसके हिसाब से उसको प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या प्रोविजन प्रोवाइड करे, ना कि सरसकट एक जैसा प्रोविजन लगा ही नहीं सकते। अब इससे होता क्या है, द थिंग इज कि अगर आप इसमें कोई, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेजेस में भी आप देख लीजिए कि अगर आप कुछ विमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व रखते हैं तो कौन उसका बेनिफिट लेता है? उसका बेनिफिट वही लोग लेते हैं, वही विमेन ले पाती है जिनको उसके साथ एक्सेसिबिलिटी मिली है, यानी जो एडमिशन ले सकती है। अगर वहां पे एक लेट अस से फॉर एग्जांपल अगर एक हिंदू लेडी है और एक अगर ट्राइबल लेडी, तो शायद ट्राइबल लेडी को तो एक्सेसिबिलिटी ना मिले तो वो वहां पे एडमिशन नहीं ले पाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कोई प्रोविजन मेरे लिए है। वही शायद जो दूसरी लेडी है जो शहरों में रह रही है उसको पता है तो वो ले लेगी। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ये जो सारे विमेन्स के लिए भी हम जो भी प्रोविजन बनाते हैं उसका बेनिफिट कौन लेता है? उसका बेनिफिट जो नियर बाय जोन में है उतनी ही औरतें ले पाती है, जो औरतें उस जोन के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिसेबल्ड वुमेन है या ट्राइबल वुमेन है या वुमेन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज सेगमेंट्स, तो वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाती है। तो व्हाट इज हैपनिंग, हमने दवाई तो बना ली है और वो दवाई क्या है कि हम वुमेन को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पर वो जो दवाई है वो सब पे काम कर रही है क्या? द आंसर इज नो। वो दवाई एक लिमिटेड जोन तक ही काम करती है। जबकि आप सोचिए कि पहले ही वो शी इज अ फीमेल, ऑन टॉप ऑफ दैट शी इज अ डिसेबल्ड फीमेल। हमने तो डिसेबल के बारे में भी सोचा नहीं है। तो अगर वो विमेन है तो वो ऑलरेडी एक मार्जिनलाइज सेगमेंट में आ गई, उसमें वो डिसेबल्ड है। और जस्ट सोचिए कि इफ शी इज अ डिसेबल्ड एंड शी बिलोंग्स टू सम मार्जिनलाइज सेगमेंट, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास कोई वे आउट नहीं है वहां से निकलने के लिए। और हम जो प्रोविजन चला रहे वो हम एक जैसा। तो व्हाट इज द कंटेम्पररी डिमांड नाउ? द कंटेम्पररी डिमांड इज कि यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो उन फीमेल्स को चाहिए है, और उसके हिसाब से कस्टमाइज पॉलिसी, कस्टमाइज लॉज, कस्टमाइज नॉर्म्स बनाइए, एंड देन प्रोबेबली वी विल एलिवेट देम और डू देयर एम्पावरमेंट। अदरवाइज ये जो बोलते हैं ना हम कि विमेन्स रिजर्वेशन, भारतीय महिला अधिनियम वगैरह, ये कुछ नहीं होने वाला है। इसका बेनिफिट अगेन फॉर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, अगर कोई हस्बैंड पॉलिटिशियन है और अगर वो किसी कारणवश नहीं लड़ पा रहा है तो दूसरी कौन होता है? या तो उसकी वाइफ होती है, या तो उसकी सिस्टर होती है, या तो उसकी मदर होती है। किसी और लेडी को वहां जगह नहीं मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फीमेल्स को एम्पावर कर पा रहे हैं। हम जो आउटरीच होना चाहिए वो नहीं होता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। कि हमको पहले जड़ समझना है कि ये क्या जड़ है, रूट कॉज क्या है। सो रूट कॉज इज दैट वी आर हैविंग इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशंस within the women category और within this women gender। और जब तक हम उसको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना कस्टम बेस्ड रिक्वायरमेंट के, हम इक्वालिटी तक पहुंच ही नहीं सकते।
ना कितनी, अगर कोई एक जगह अपॉर्चुनिटी है, एंड इफ देर इज अ हिंदू लेडी एंड इफ देर इज अ ट्राइबल लेडी, ऑब्वियसली हिंदू विल हैव एन एज ओवर ट्राइबल, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो उस तरीके से एलिवेट हुआ है. तो दैट इज द प्रॉब्लम. सो जो सबसे पहला कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम आज के डेट में जो हमें सॉल्व करना है वो ये है कि इन जो इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन से इसको पहले हटाओ, मेक देम कम ऑन इक्वल फुटिंग एंड देन इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल. अभी जो हमारा विमेन्स रिजर्वेशन चल रहा है ना, वो इक्वालिटी अमंगस्ट अनइक्वल्स है, जो कि बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है. दैट्स व्हाई आई सेड इवन इफ कल को वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, बट इट विल बी अ वेरी यूजलेस थिंग टू हैव, बिकॉज उसका कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि वो बेनिफिट उन्हीं को करेगा जो ऑलरेडी बेनिफिटेड सेगमेंट में है. वो विमेन जो ऑलरेडी बेनिफिटेड सेगमेंट्स में, जो डिस्कार्डेड है, जो मार्जिनलाइज्ड है, वो तब भी मार्जिनलाइज्ड ही रहने वाली है. तो पहला क्या करना है, इससे सॉर्ट करना है हमें, एंड देन प्रोबेबली वी कैन गो अहेड. दूसरा जो विमेन के साथ एक कंटेम्प्रेरी इशू मुझे लगता है, दैट इज रिलीजियस अकोमोडेशंस. चाहे आप शबरीमलाई का इंसिडेंस देखिए, हाजी अली दरगाह देखिए, शनि शिंगणापुर टेम्पल देखिए, और ऐसे ऑलमोस्ट सैकड़ों टेम्पल्स है इंडिया में, सैकड़ों रिलीजियस प्लेसेस है रादर इंडिया में, जहाँ पे विमेन का एक्सेस लिमिटेड है या नो एक्सेस है. ये क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर women. And see, we are talking about 2025. We are not there in 1949 or 1950 or even before that. और अमृत कलश तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक घोषित कर चुके हैं, हमने बहुत कुछ कर दिया है, बट हमारा जो इंटरनल एस्पेक्ट है वो स्टिल सेम. हमारे पास ऑन वन हैंड वी हैव आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने कहा ना कॉन्स्टिट्यूशन का बेस्ट पार्ट इज कि वो आपको इंडिविजुअल दिखता है, ह्यूमन दिखता है, वो आपको मेल फीमेल नहीं दिखता. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं नहीं लिखा कि फीमेल वर्शिप नहीं कर सकती या मेल वर्शिप नहीं कर सकता, बट हमने ये चीज को रखा है. और हम क्या करते हैं कि अगर आप फीमेल हो तो आप शबरीमलाई टेम्पल में नहीं जा सकते, अगर आप फीमेल हो तो आप हाजी अली में नहीं जा सकते, या शनि शिंगणापुर में नहीं जा सकते. So what has happened? This is the discrimination which we have created just by identifying कि हाँ ये जेंडर बेस्ड सेपरेशन थीसिस है. तो इसको भी ओवरकम करना पड़ेगा. डू नॉट पुट एनीथिंग, आपके जेंडर को इसेंशियल कंडीशन में रख दिया. I mean, without any offense, for example, in Nagpur, there is this Swaminarayan temple, and when I went there, there is this barricade, वो अंदर में कैसा बैरिकेड रस्सी से लगाया है, and they said कि इसके आगे फीमेल नहीं जा सकती. Why? Is there anything कि मेरी वर्शिप में कुछ कमी रह गई है जो शायद काउंटर पार्ट मेल में ज्यादा है, कि वो ज्यादा मेरे से वो रिलीजियस बिलीफ रखते हैं और मैं कम रखती हूँ. बट ये बाइफर्गेशन हो चुका है, इट्स अ रिलीजियस बाइफर्गेशन नाउ विच हैज बीन आइडेंटिफाइड एज एन एसेंशियल कंडीशन. तो इसको हमें दूर करना है. ये ठीक नहीं है. ये आने वाले जनरेशन्स में इससे हमें प्रॉब्लम ही होगा, इससे कुछ सॉफ्ट नहीं होगा, बट इस तरीके के कॉन्सेप्ट से हमें प्रॉब्लम ही होगा. तीसरा जो एस्पेक्ट है जो जेंडर को लेके आई वांट टू टेल इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव राइट्स. रिप्रोडक्टिव राइट्स एक ऐसा टैबूड जोन है, जहाँ पे हम हमेशा देखते हैं कि नोबडी लाइक्स टू टॉक अबाउट इट. अब रिप्रोडक्टिव राइट का जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी जिनसे ज्यादा रिलेटेड है, मोस्टली दे आर फीमेल्स. ऑफ कोर्स मेल एंड ट्रांसजेंडर आल्सो हैज रिप्रोडक्टिव राइट्स, बट मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का जो क्या कहते हैं जो भुगतान है वो किसे करना पड़ता है, वो फीमेल्स को करना पड़ता है. इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि if a married woman wants to abort her child, but she cannot do it. Why she cannot do it? Because she need to take the consent or permission from the spouse. अगर spouse ने कहा, यानी husband ने कहा कि नहीं हमको बच्चा चाहिए, तो she cannot abort it. And इसके लिए law है. There is this medical termination of pregnancy act which says that you need to get the consent. अब देखिए simple logic यहाँ पे ये है कि लॉ एंड सोसाइटी इट्स अ विशियस सर्कल, और एक
जो चीज है वो बहुत ही ओमनी प्रेजेंट है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लॉ चेंजेस सोसाइटी, सोसाइटी चेंजेस लॉ, इट्स अ विशियस सर्कल। जो भी लॉ बनता है उसके हिसाब से सोसाइटी बनना शुरू होती है, और जैसे भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से अपने आप लॉ बन जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होती है। और उसी वजह से जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना, तब उन्होंने लिखा कि नहीं नहीं नहीं, कोई भी वाइफ हो ऐसे अपने आप से टर्मिनेट नहीं कर सकती, शी नीड्स टू टेक द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, लेट द हस्बैंड डिसाइड कि कर सकते कि नहीं कर सकते, एंड देन ओनली दैट विल बी डिस्कस्ड, तो ये इतना प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्ट हुआ है लॉ में। एंड जहां पे कंसेंट आ गया, सी इट इज माई बॉडी, इट इज माई विश वेदर आई वॉन्ट टू बिकम अ मदर और नॉट, अल्टीमेटली 9 मंथ्स तो मुझे कैरी करना है, बट मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, उनका सुनना, जो हस्बैंड बोलेंगे वो होगा, मैं जो बोलूंगी वो नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ अबॉर्शन has been confined to the consent given by the spouse. दूसरा जो है कि मेंटली चैलेंज विमेन जो होती है, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्युटली उनके पेरेंट्स गार्डियन के कंट्रोल में होते हैं। एंड वी हैव सीन वर्स्ट एग्जाम्पल्स, ओके, आप में से अगर कोई लॉ फैकल्टी को बिलोंग करता होगा तो आपको पता होगा, या फॉर दैट मैटर इवन साइंस में अगर आप होंगे, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर लाइक मेंटली चैलेंज विमेन, एंड दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि कल को इनके साथ। एंड हमारे यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि मेंटली चैलेंज विमेन हैव बीन रेप्ड, ओके। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जहाँ पे दिस मेंटली चैलेंज गर्ल, व्हेन शी गॉट रेप्ड एंड देन शी बिकेम प्रेग्नेंट, सो एंड उसका जो मेंटली चैलेंज वर्जन था ना, वो इट वाज नॉट लाइक कि पूरी तरीके से पागल है, शी वाज लाइक half insane, and she could understand that she is becoming mother, so she wanted that child, but the parents said that we don't want her child because she is dependent on us and she has been raped, and we don't want कि ऐसा कोई उसके साथ liabilities रहे, and then eventually she needed to abort that child. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था वहां पे कि हमें यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिवली इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। वी नो दैट शी वांट्स इट, बट वी कैन नॉट अलाउ इट बिकॉज गार्डियन, और गार्डियन क्यों, बिकॉज लॉ ही कहता है कि अ पर्सन इज मेंटली चैलेंज, द गार्डियन इज पेरेंट, सो शी कैन नॉट, इवन इफ शी इज अबव द एज ऑफ 18, शी कैन नॉट टेक द डिसीजन। सिमिलरली माइनर गर्ल्स के साथ आपने बहुत बार पेपर में भी पढ़ा होगा कि छोटी छोटी बच्चियां होती है, फिजिकल अब्यूज हो जाते हैं उनके साथ, और उनकी फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल अब्यूज करते हैं, दे हैव बीन रेप्ड एंड देन इवेंचुअली दे बिकम प्रेग्नेंट, एंड बिकॉज दे डोंट नो, बहुत बार तो आफ्टर 25-30 वीक्स दे कम टू नो दैट दे आर प्रेग्नेंट बिकॉज दे आर स्मॉल गर्ल्स, 10-12 year girls who don't understand this thing. And then we don't have any provision because medically it is not possible to terminate the pregnancy because it might cause serious लाइफ थ्रेटनिंग एकदम इश्यूज हो सकते हैं उनके साथ। एंड देन व्हेन द मैटर वेंट टू कोर्ट, कोर्ट टेक्स इट्स ओन टाइम, फास्ट ट्रैक में भी जाएगा तो भी 1 वीक तो लगेगा कम से कम पूरी प्रोसेस होने में, एंड 1 वीक इज अ बिग टाइम जब वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है। सो दिस इज समथिंग जो बियॉन्ड कंट्रोल है, बट ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। ब्रुटैलिटी हमारी कंट्री में इतनी बुरी तरीके से फैली है कि people don't even realize that what is going to happen to that small minor girl who is not even able to understand that she is becoming pregnant. And then we have seen the physical abuse of highest order to these victims. So these are the aspects जिसके लिए I think अभी तो schools में काफी सेक्स एजुकेशन एंड घरों में भी ये सारी बातें कॉमन हो गई है, बट आई थिंक एज अ सोसाइटी वी मस्ट मेक श्योर दैट these rights are protected, these children are protected from such type of harmful physical abuses which happens to them. तो इस पे हमें काम करना है जहाँ पे हम ये देखें कि ऐसा हो ना पाए ना किसी भी बच्चों के साथ, ना तो ऐसा हो, एट द सेम टाइम लॉ, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मशीनरी, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज, हम सब बहुत ही सेंसिबली इन सारी चीजों को देखें। एंड ultimately it is her body, so give her some freedom to understand and to decide what she wants to continue or she doesn't want to continue.
ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी बहुत ही सेंसिटिव है व्हेन इट कम्स टू विमेन. Of course, political tokenism is political participation and representation is one of the aspects which I want to highlight in this discussion. As you must be knowing कि हमारा जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें हमने 1/3 सीट्स को रिजर्व किया है फीमेल के लिए इन पंचायत सिस्टम. एंड देन 42 43D में हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशंस भी दिया है विमेन को कि वो लोग पंचायत में रहेंगे. बट ये सब होते समय हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो पंचायत का रिजर्वेशन देखिए, बट अगर मैं ऑल 545 सीट्स को अगर मैं देखती हूँ तो वो ओपन फॉर ऑल है. तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए है या सिर्फ मेल के लिए. व्हाई नॉट, लाइक लेट अस एज्यूम कि 445 में से 250 विमेन तो कॉन्टेस्ट कर ही सकती थी उन ओपन सीट्स पे, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं है. बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है. हम 2024 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी ये है. और ये भी 74 में से अगर आप देखोगे तो इसमें से 60% वो फीमेल है जिनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑलरेडी है एंड 40% फीमेल्स आर कि हाँ चलो नए कोई इंट्रोड्यूस हुए हैं एंड दे आर वर्किंग. सेम नंबर इज देयर इन राज्यसभा. देयर इज नो सच थिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो पॉलिटिकल टोकनिज्म है, एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी दिस सेकंड पिक्चर. यू नो जो सेकंड पिक्चर है सरपंच साहब, एंड देन देयर इज दिस सरपंच लेडी. आपने वो पंचायत सीरीज देखा है क्या? पंचायत करके एक सीरीज आता है ओटीटी पे, यू नो. Yes. Yes, And ma'am. then you know Sarpanch ji and Mrs. Sarpanch is there, and then there is Mr. Sarpanch, you know, Pradhan ji and Pradhan. Mrs. Pradhan, right? So this is the fact. Now what is happening? You know, हम इतना 1/3 reservation दे रहे हैं, 73rd amendment हो गया, but what is happening? Most of the time, even if it is the female who is the Sarpanch, but who takes the decision? It is the male member of the family. Now this is the problem. ओके कि पॉलिटिकली क्या है ना, हम दिखाने के लिए तो हम बहुत कुछ कर देते हैं. यू नो आजकल तो पॉलिटिक्स इज ऑल ड्रामा. यू नो इट इज नोवेयर अ रियलिटी नाउ. एंड ये सब ड्रामेबाजी में होता क्या है ना कि हम बस एक वो टोकनिज्म ये करते कि हाँ यहाँ पे इतनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, हाँ हमारे ये है. बट एक्चुअली में इफ यू सी द नंबर, यू नो जहाँ पे 545 में सिर्फ 74 विमेन है, वहां पे कौन तुम्हारी आवाज सुन रहा है? यू नो हाउ मेनी विमेन पार्लियामेंटेरियंस यू नो हु आर एक्चुअली talking and placing their voices about female issues? How many? Very less. See, they themselves are not sensitive towards it, तो हम क्या ही expect करेंगे? See, when my problem is not represented, when my problem is not heard, my problem is not explained, who will understand it? It's not, you know, I am not blaming the other part. I am blaming the same part, you know, my gender. Why they are not so vocal about it? Why I need to rely every time on NGO or someone third person who can stand for me? But this is the fact. Okay. और ये फैक्ट क्या करता है ना, हम ये जो कोटा सिस्टम कर, अरे क्यों चाहिए कोटा? ऑल 445 और 545 सीट्स आर ओपन फॉर मी, but I am not doing it. I am not able to do it. I know that even if I try to do it, probably I might not get the votes, or I might not, you know, see the day of the light. This is the fact. ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है ना कि पॉलिटिकल टोकनिज्म हमने कर चुके हैं हम जेंडर को लेके. यू नो इट इज नॉट समथिंग विच इज दिल से कुछ नहीं आ रहा है. ये जो भी हो रहा है ये सब टोकनिज्म हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है. यू माइट फील in a different way, but this is my honest view about what is happening in India. And then of course the another issue which I want to talk here is about the sexual harassment of women at workplaces. I already told you in this preliminary slides, if you can see, this is the reported cases. 2021 का डेटा है NCRB पे कि 1750 सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस हुए हैं. 2022 में ये लगभग 22,000 के करीब आया है. लेटेस्ट रिपोर्ट अभी आने के हैं. तो इतनी रिपोर्टेड केसेस है सेक्सुअल हेरासमेंट की,
और अनरिपोर्टेड तो आई टोल्ड यू ना मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, मिनिमम, मैक्सिमम भी हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय 5. And many of you are female, you know it is very difficult when we work in this structure. And बहुत बार तो आपने बहुत ही अनरीजनेबल डिबेट्स भी सुने होंगे न्यूज चैनल पे, अरे उसने कपड़े ऐसे पहने थे, अरे उसका, अरे दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स. बट व्हेन you are not able to provide her a very safe environment to work wherein she can feel that no, I can work here till late night. For example, you know, the brutalist example of sexual harassment at workplace, हमने आरजी कर का जो केस अभी देखा है, you know, few months back, अभी भी हम सोचते तो it gives goosebumps, you know. हम कैसे सोचे कि इतना डेडिकेटेड लाइफ अगर एक डॉक्टर स्पेंड कर रही है उस हॉस्पिटल में, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग टू हर, इट इज लाइक अनबिलीवेबल. दिस इज द नेचर ऑफ ब्रुटैलिटी, यू नो. हम सेक्सुअल हैरेसमेंट तक रुकते नहीं है, हम उसके बियॉन्ड जाके वी मेक श्योर दैट शी गेट अ वेरी पेनफुल डेथ. And then we are in Amrit Kal. Okay, we already spent 75 years of independence. This is the situation. We have this act in 2020, 2013. What is happening? Still cases are there. Still, and then the worst part is, you know, Arjikar case में तो worst part था कि the whole system was there to protect the criminal rather than, you know, looking for कि वो विक्टिम को कैसे जस्टिस मिल सके, उसको छोड़ के हम बाकी सब चीजों पर ध्यान देते. तो दिस इज व्हाट दिस सेपरेशन थीसिस इज ऑल अबाउट. एंड दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज डेंजरस, यू नो. अगर ऐसा सोसाइटी है तो ये हमारे लिए या हमारे आने वाले जनरेशंस के लिए बहुत डेंजरस है. सी, एक्ट बन जाएगा, एक्ट इज व्हाट, इट इज अ पीस ऑफ पेपर. अनलेस एंड अंटिल यू पुट अ लाइफ एंड सोल इन इट विद इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट, नथिंग विल हैपन. और इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट भी लिमिटेड है ना. अगर कोई विटनेस ही नहीं है तो एक्ट होके भी क्या फायदा. अगर कोई एग्जीक्यूशन कर ही नहीं रहा है, इफ द पुलिस ऑफिसर्स एंड अदर मशीनरीज आर नॉट वर्किंग, व्हाट द लॉ विल डू, you know. So we need to see that what version of society we want, and if we want this version, then be into it, you know. Then we might see Arjikar very often. We have already seen Nirbhaya, we have seen Atifa, we have seen Ankita, we have seen Arjikar, and so on, every day, so on. Only thing is few gets hyped and others remain silent. So ये भी एस्पेक्ट है. सेक्सुअल हैरेसमेंट एक एक्ट है जो बहुत अच्छा टूल है विमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए, बट इसका जो प्री रिक्विजिट है वो समझना पड़ेगा. लोगों को आके सामने आके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, विटनेसेस रहने चाहिए. और उसके बाद फास्ट ट्रैक में, जैसे मैंने ये चार्ट यहाँ पे शेयर किया कि फास्ट ट्रैक का उन्होंने प्रोविजन क्रिएट किया है कि इसको फास्ट ट्रैक में आपको सॉल्व करना है. 17,500 केसेस इसमें आ चुके हैं, बट जो अनरिपोर्टेड है उनका हम क्या करें. ओके, दिस इज द वेबसाइट जिसमें आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा. यू कैन जस्ट गूगल इट कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस में जो प्रोसीजर है वो आपको गूगल पे वो आराम से मिल जाएगा. सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट. Now these are the points which I wanted to mention about females, जो कि बहुत ही sensitive और contemporary areas है. I am not going into the details of the backdated problems, domestic violence, etc. etc. वो तो चल ही रहे हैं, but उनके साथ ये सारे problems हैं. Now similarly there is this एस्पेक्ट, यू नो, लॉ मेकिंग का. ऑफकोर्स आप में से काफी लोग लॉ में नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एक बता रही हूँ एग्जाम्पल कि हाउ दिस लॉ एंड सोसाइटी थिंग वर्क्स. आपको पता होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कर्ता. कर्ता यानी क्या, लॉ ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इट इज ऑलवेज द मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. और जहां पे भी मेल नहीं है वहां पे फीमेल मेंबर होगी, पर कब तक, जब तक उनकी फैमिली में कोई मेल मेंबर नहीं आता तब तक. यानी हम आज की डेट में भी क्या कर रहे हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि घर का कर्ता धर्ता कौन है, इट इज द मेल मेंबर. और हिंदू लॉ में ये एक्सेप्टेड नॉर्म है. सिमिलरली अगर आप गार्डियनशिप एक्ट देखोगे तो गार्डियनशिप एक्ट में तो बहुत ही फनी टाइप के प्रोविजन है कि रेगुलर केसेस में इट इज द फादर हु इज द गार्डियन एंड देन इट इज द मदर हु इज सेकेंडरी. बट अगर इललेजिटिमेट चाइल्ड है तो मदर इज द प्राइमरी गार्डियन एंड फादर तो वी डोंट नो वेदर, यू नो, if at all it comes to know, then the father is the secondary. So जहाँ पे liability factor ज़्यादा है वहाँ पे mother, और जहाँ पे respect and honor factor जहाँ पे वहाँ पे father. But this is the law, you know, this is there. Similarly
सेक्शन 6 जो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सक्सेशन एक्ट में, वहां पे फीमेल्स को तो पहले फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर भी नहीं था। तो जो 2006 का अमेंडमेंट आया उसके बाद गर्ल्स को वहां पे शेयर मिलने लगा। सो व्हाट इज हैपनिंग कि सोशल स्ट्रक्चर्स बहुत बार रिफ्लेक्ट हो जाते हैं लॉ मेकिंग में, और फिर हम सोसाइटी को उसी तरीके से चलाते हैं कि नहीं नहीं ये चीज ऐसे ही चलेगी। बट women certainly are vulnerable today and we need a customized provision to address the issue. Okay. अब सिमिलरली आई वांट टू टेल यू कि जब भी हम जेंडर सेंसिटिव या सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो डोंट मिस अंडरस्टूड इट ओनली विथ फीमेल। सी जेंडर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक सोशल साइंस का टर्म है, और सोशल साइंस का टर्म होने की वजह से ना हर एक का एक अलग क्वेश्चन है, अलग रिक्वायरमेंट है, और हमको हर जेंडर को उस हिसाब से डील करना है। नो व्हेन इट कम्स टू मेल, मेल के साथ तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि लॉ तो ये समझ के ही चलता है कि ये सबसे क्रूशियल क्रूएल स्पीशीज अगर धरती पे कोई है तो ये मेन है, क्योंकि उनके हिसाब से प्रिजम्पशन ये है कि कोई भी बुरा काम जो है वो मेन करता है, जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। now we know that many a times जब भी हम ब्रुटैलिटीज को देखते हैं तो फीमेल भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। बट लॉ मेकिंग क्या करता है ना, लॉ अंडरस्टैंड करता है कि नहीं नहीं ये क्या है ना कि विमेन विक्टिम है, उनके साथ थोड़ा सा नरमाई से रहना चाहिए। बट अगर मेन कल्प्रिट है तो वहाँ पे हमको कोई भी नरमाई नहीं दिखानी है, वहाँ पे वी नीड टू बी वेरी स्ट्रिंजेंट अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। अब जैसे कि ये कैपिटल पनिशमेंट का सेंटेंस है कि अगर किसी फीमेल को कैपिटल पनिशमेंट हो जाता है, इफ शी गेट्स प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लाइक पहले से होगी या बाद में पता चला होगा, व्हाट सो एवर, हर डेथ सेंटेंस गेट कैंसल्ड। जो कि अगर कोई मेल है और अगर उसको पता चलता है कि मैं पिता बनने वाला हूँ तो उसका डेथ सेंटेंस कैंसिल नहीं होता। सो लॉ में क्या है ना कि ये चीज अंडरस्टूड है कि विमेन कभी परपेट्रेटर नहीं यानी क्रिमिनल नहीं होती है, और वो बहुत ही लाइफ सेविंग काम करते हैं वगैरह वगैरह। सिमिलरली जो लेटेस्ट हमारे भारतीय न्याय संहिता जो हमने बनाई है, जबकि मुझे लगता है एज अ लॉ पर्सन दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी विद द गवर्नमेंट टू मेक दिस प्रोविजंस जेंडर न्यूट्रल। बट होता क्या है ना कि दे आर अगेन उस बायस स्ट्रक्चर में जाते हैं, एंड देन they seem to be very this thing, they seem to be very biased about it. So what the BNS says that a man committing any offense against फॉर एग्जाम्पल जैसे रेप का जो प्रोविजन है उसको बीएनएस में 75 करके सेक्शन 75 में डाल दिया है, एंड देन दे से कि फिजिकल कांटेक्ट एट एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल वर्चूज जो रखा है। सो दैट इज दिस आर्टिकल सेक्शन 75 ऑफ दिस एक्ट, एंड द फर्स्ट लाइन इट सेज दैट अ मैन कमिटिंग एनी एनी एक्ट, वहां पे उन्होंने कहीं पे भी फीमेल या ट्रांसजेंडर या ऐसा कुछ लिखा नहीं। सो दे अंडरस्टूड, द लॉ अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर अ रेप इज हैपनिंग it is done by the men, there is no female involvement here, so इतना विक्टिमाइज कर दिया है मेन को। सिमिलरली एनी मैन हु कमिट्स द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज 4, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स एवरीथिंग shall be punished with imprisonment. Now what happens, suppose if there is a conspiracy and if there is a female who is attached in this process, so she get escaped from all this, and who will be targeted here? It is the men. So what is happening, that law understands and the law presumes that it is the men who is the culprit, and law presumes that female are always the victims, which is not true. Again, I will quote here section 78 of BNS, which talks about voyeurism and all. It says that any man follows a woman or contacts. Now can any one of you tell me that ऐसा कभी हुआ है क्या कि women ने किसी को follow नहीं किया? And we have examples, it is not like that. बट अगर विमेन किसी मैन को फॉलो करती है या उसे परेशान करती है या उसके साथ रिपीटेड इंटरैक्शंस करने की कोशिश करती है तो वो वॉयरिज्म नहीं है।
बट अगर मेन ये सारी चीजें करता है तो वो ऑफेंस है, बीएनएस में उसके अगेंस्ट पनिशमेंट का क्लॉज दिया है. So this is a bifurcation. This is absolute discrimination which has been meant for a men, wherein we have seen that this bifurcation is there. कि men को हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, कल्प्रिट समझ रहे हैं, और फीमेल को क्या समझ रहे हैं, विक्टिम समझ रहे हैं. अनदर गुड एग्जाम्पल, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे पास है. इट्स एन act which says that any aggrieved person means any women. यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि अगर शादीशुदा लाइफ में किसी को भी तकलीफ हो रही है, एग्रीव्ड पर्सन, तो वो कौन है? वो फीमेल है. मीन्स इन एनी डोमेस्टिक रिलेशनशिप द लॉ बिलीव्स दैट द जो भी विक्टिम है वो कौन है? That is the female. And who is the culprit here? It is the male and his family members, who is going to trouble that women, that women who is married, and she is residing with that person. She is the victim and the husband is the culprit. Now this is the set norm. Section 2A of this act talks about this. No, this is absolute wrong. I can give you the example of this Arnish Kumar versus State of Bihar. Now, what has happened in Arnish Kumar's case is that there was this female who was residing with her in-laws, and the male used to work in Delhi, and this family was in Bihar, and both the in-laws, they were bedridden. And not able to move without assistance, and that this female, she felt like this as a liability, so she registered a FIR against the in the police station, mentioning that uh, uh, she has been tortured by the in-laws. And what happened? The Bihar police at that time, they went to her home, and they tried to uh, arrest the in-laws, because that is the law, that this domestic violence act says that if there is any complaint registered by this aggrieved person, then immediate arrest will be there. And when the police went to arrest that in-laws, they saw that both of them are bedridden. They are not even able to move their hand or their leg. And then how can these people torture? And then eventually the court realized that while doing such type of arrest, it is the responsibility of the police to see that whether there is a genuine complaint or not, whether there is this genuine 494 or not. And I can tell you the result. You see this graph. Now this is the first graph. You can see ki after Arnish Kumar case, this gray graph is before Arnish Kumar, and this extreme right dark blue graph is after Arnish Kumar case. So Arnish Kumar case के बाद ये पता चल गया लोगों को कि फॉल्स क्लेम भी होता है, ऐसे फॉल्स फीमेल, ऐसे फॉल्स 494 भी करते हैं, 498 भी करते हैं. एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइंस इन अर्निश कुमार केस. एंड देन यू सी द नंबर ऑफ केसेस जो है वो रिपोर्ट, जो एफआईआर का जो ये वो एकदम से ग्राफ कम हो गया. एंड आई कैन टेल यू, यू नो, आफ्टर अर्निश कुमार द कन्विक्शन रेट इज ऑलमोस्ट 2%. मीन्स अगर 100 केसेस 498 में या 494 में आते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 ही केसेस में कुछ ऐसे लगता है कि सब्सटैंशियल ट्रुथ है, बाकी 98% केसेस में फॉल्स एलिगेशंस होते हैं हस्बैंड्स और उनके इन लॉज की तरफ. ऐसा रिकॉर्ड है. आई एम नॉट सेइंग लाइक ऑन माय ओन, बट दिस इज द रिकॉर्ड व्हिच इज देयर. एंड दैट इज व्हाई अर्निश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज very landmark judgment, wherein guidelines has been said that you cannot just randomly, you know, police cannot be very arbitrary in its arrest, but they need to use their mind and see that whether the whatever the victim is saying, whether there is any truth or not. So introspection ka requirement hai. Another important case is about the Manju Ram Kalita versus State of Assam. Now this particular case is again about misuse of 494 is there, wherein 10 minutes, madam,
wherein in this particular case what has happened, this particular lady, Manju Kalita, she was living separately with her husband, and after few years, like after 4 5 years, she understood that her husband is getting remarried. So when she knows that he is getting remarried, she filed a क्रुएल्टी का कंप्लेंट अगेंस्ट हर, लाइक एफआईआर किया, एंड देन शी सेड कि ये मुझे बहुत क्रुएल्टी करता है, अब्यूज किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देन द कोर्ट आस्क्ड दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस 4 5 years. ऑल ऑफ ए सडन यू कम टू नो कि जब उसको पता चला कि हस्बैंड रीमैरिज कर रहा है, देन यू आर कमिंग एंड सेइंग. अदरवाइज अगर आपके साथ सच्ची में क्रुएल्टी हुआ है तो आपने तभी के तभी एफआईआर फाइल करना था, बट यू आर टेकिंग योर ओन टाइम, and then when you realize that the other person is marrying and then you are coming to court, then there is some issue. So this is absolute case of misuse of 494. And then she also agreed that there is this like I just filed a false complaint because I came back to my maternal place on my own, nobody forces me, but since he is getting remarried, I don't want to allow him to remarry. And this type of things happen, wherein we have seen that men have been absolutely victimized, for no reason, and the punishment is so harsh. Like for example, in case of domestic violence, if there is an arrest, then if you are a government servant, then forget it, because you will be arrested for more than 48 hours, so automatic suspension will be there, and then it is very very difficult to prove that you are the not one who is assaulting. Now I can tell you one more example of this sexual harassment act. जैसे मैंने आपको बताया कि aggrieved person means any women, and if that woman says, just imagine if I go to the police station and I say in my FIR that the male counterpart in my office was like staring me with bad intention, that is enough for him to get arrested. And how I am going to prove bad intention? नहीं कर सकते. इट इज, आई कैन टेक अ पर्सनल वेंजेंस अगेंस्ट हिम कि भैया तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो देखो मैं तुमको अरेस्ट करवा सकती हूँ, कुछ भी बोल के. सो इतना वल्नरेबल हमने मेल जेंडर को कर दिया है जस्ट टू प्रूव दैट फीमेल्स आर विक्टिम. So this type of combination is again very dangerous for the society. We just cannot be with this assumption that females are always the victims and males are always the culprit. Sometimes this is actually the fact, but many a times this is not the fact, and that is why we need to see that men needs to be protected in a very customized way. Yes, there were brutalities. I already told you कि जहाँ पे हमने देखा है कि religious discriminations होते हैं, political tokenism होता है, या फिर we have seen intersectional discrimination. Yes, there is a role of male gender, but every time it is not the male gender. तो इन्हें हमें थोड़ा सा सहानुभूति से भी देखना है और ये देखना है कि हम इन्हें हमेशा victimize ना करें. Okay, now I already told you this Arnish Kumar graph, and then there is this men वाला भी जो zone है वो भी है कि it is not only me too but even men too needs the protection. And the last part of our discussion is of course the contemporary issues related to transgender. I already told you that since last 75 years this particular segment has been left, completely left out of focus. And after Navtej Singh Johor's case only that we realize that they are human beings. Of course, we are yet to accept them as a part of India or Indian citizen, but now we at least started to understand that they are human beings. Now, I would like to divert your attention here with the wordings of the preamble. And the first word of our constitution talks about we the people of India. You can see I have written it here. We the people of India. And what does we say? We say I as an individual, I as a human being, I as a person, I as a citizen of India. And we does not say that I as a male or I as a female or I as a transgender. So constitution was wide open, in accepting my biological version along with my social version. But we as a people were not ready to accept it. Now, for example, जैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, वो भी आपको किसी भी जेंडर का हो सिटीजनशिप देता है. एक्ट डज नॉट से कि हम सिर्फ मेल या फीमेल को देंगे, बट हमने क्या किया है, हमने बहुत सारे कंस्ट्रेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक भी रिजर्वेशन पॉलिसी बताइए जिसमें ट्रांसजेंडर को ऐड किया है. Your answer will be same as mine. No. There is this Ladki Bahin Yojana. Why there is not Ladki Transgender Yojana? They are so in much need.
Why the government is not doing it? Because government does not want to recognize them. सिंपल है ना, क्योंकि वो वोट शेयर में अभी उतना नहीं आ रहे ना जितने बाकी जेंडर्स आ रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना कि यू कैन अफोर्ड देम टू हैप्पीली मार्जिनलाइज, है ना, इंक्लूसिविटी नहीं है हमारे पास अभी। डिसेंबर के ये आना शुरू हुए हैं, क्या कहते हैं, वॉशरूम्स वगैरह वगैरह, ट्रांसजेंडर के किसी ने देखे क्या? मैंने तो नहीं देखे है इंडिया में, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी वेरी इंक्लूसिव अबाउट इट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ फियर कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो लोगों को पता चल जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज, आई मीन, राइट टू पी इज a big battle now in US because they have identified transgender। हमारे यहाँ पे तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, उसके बाद हम ये सारी बातों पे बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, अरे हम उनको पढ़ा लिखा ही नहीं रहे। देयर इज नो स्कूल, देयर इज गर्ल स्कूल, देयर इज बॉय स्कूल, कोएड स्कूल, व्हाई देयर इज नॉट इंक्लूसिव स्कूल? देयर इज नो स्कूल वेर इन वी कैन हैप्पीली अकोमोडेट ट्रांसजेंडर, और अ पर्सन can enroll his or her child by saying that he or she is a transgender। नहीं है ऐसा, तो कहाँ से एजुकेशन देंगे? लोग तो पहले उन्हें घर से निकाल देते थे, अभी एटलीस्ट पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि यार माय चाइल्ड इज अ ट्रांसजेंडर। सो एजुकेशन नहीं देंगे तो दे विल बी इनटू बेगिंग ओनली, एंड व्हेन दे बेग हम कहेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गए हैं। तो कहीं तो ना समाज में ये सब अभी बदलना चाहिए। दीज आर नॉट समथिंग which we can afford to neglect. Now the this contemporary generations, they are well aware about all the facts, and probably we can see that आने वाले टाइम में this will become a very common phenomena that we are having transgender across us. A very simple example is कि अगर आपके यहाँ पे आपको कोई domestic help चाहिए, and if some person comes and says that I am a transgender, are we ready to hire? Probably no. We will have our own constraints कि नहीं 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 हमको नहीं करना है, हमारे यहाँ पे बच्चे डर जाएंगे, etc etc। So these are the things which are there, and I think this taboo needs to be removed from society, and then only we can say that yes, there is this cultural and gender based inclusivity which is there in the society. The latest judgment of like 2014 judgment of Nalsa versus Union of India was the first time where we understood that there is this transgender concept and we have to accept them as a person. And then later on in the Navteej Singh Johar case, when the decriminalization of 377 happened, that was the first time when we understood that they are human beings and let them have their own sexual desire. We cannot make them criminal because of any scientific nature, hormones which is happening within them. And after that this whole thing started कि चलो ट्रेन में रिजर्वेशन दे दो, एग्जाम फॉर्म में भरो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हमने ये ट्रांसजेंडर शुरू कर दिया, उसके पहले तक हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन, कोई पॉलिसी, कोई योजना, कुछ नहीं है फॉर दिस मिलियंस ऑफ पीपल हु आर देयर, एंड वी जस्ट लेफ्ट देम ऑन देयर ओन फेट। तुम्हारे नसीब से क्या कर सकते हो करो, हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ दे हैव नॉट बिकम द वोट बैंक। जिस दिन वो बनना शुरू हो जाएंगे ना, then probably we will do everything, then we can see some ladli yojana for them as well. Right now there is no such thing. And the very latest judgment जो है सुप्रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट ने नहीं दी है सेम सेक्स मैरिज को। और यहाँ पे इस जजमेंट को कभी टाइम मिले तो जरूर पढ़ना। कोर्ट हैज मेंशन्ड दिस दैट हम कल्चर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, हमारी जो मान्यता है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और हम सेम सेक्स मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं देंगे। मे बी आने वाले टाइम में ये जजमेंट चेंज हो जाएगा, बिकॉज मेनी कंट्रीज हैव चेंज्ड इट। Right now we are not in a position to accept this cultural change, dynamic cultural change which has happened with transgender. Of course there is this Transgender Protection Act, but it has also its loophole. Let us not go into the details of it, but I just want to say कि ये तो gender ऑलरेडी नेग्लेक्टेड है। मेल फीमेल में कुछ तो हुआ है, कुछ तो डेवलपमेंट्स हुई है 15-3 में, बट ट्रांसजेंडर के लिए देयर इज नो सच थिंग व्हिच हैज बीन डन। एंड आई थिंक वी एज अ सिविलाइज्ड सोसाइटी मस्ट थिंक अबाउट हाउ वी कैन बी इंक्लूसिव अबाउट
transgender, how can we sensitive about the men, and how can we be protective about female. तो सबके लिए जेंडर सेंसिटिविटी का ना अलग अलग नोशन है, और उसी अलग अलग नोशन से हमें इसे समझना है। एक सरी का पैरामीटर लगा के कुछ नहीं होगा। देयर विल नेवर बी अ जेंडर सेंसिटिव सोसाइटी इफ यू गिव वन मेडिसिन टू ऑल। यू हैव टू सी टू इट कि कस्टमाइज मेडिसिन जो है वो हमें देना है, जिसका जो रिक्वायरमेंट है। ट्रांसजेंडर को पहले डिग्निटी दो, रिकॉग्निशन दो, उसके बाद उनको पॉलिटिकल और वो सब करवाओ। मेन को क्या है ना, मेन को उस स्टीरियोटाइप से पहले बाहर निकालो, एंड देन सी कि यस they are not that inhuman in which we have identified them. And similarly females, give her liberty, give her freedom, give her empowerment, that is what is needed. Not every time कि उसको बिचारी बना के रखो, नहीं चाहिए, so customized protection is required, and then only I think we will be able to make this society as a very gender sensitive society. So that's all from my side, and if you have any queries, you can call me. Very nice session, madam. Sorry, Lot of query inputs. nahi, sorry, you can ask me, not call me. You can ask me. Yes, yes. Rahul sir, Dr. Rahul. Hello, madam. Nice Yeah. lecture. Thank Actually, you so madam, much. how our education system can change the things, how the gender equality we can manage the things, and how we can. Sir, if you ask my honest opinion, education system has already done lot, and I already told you today is the birth anniversary of Savitri Bai Phule. She is the pioneer, in women's education, and making this whole what you can say, this revolutioning this whole stereotyping ऑर्थोडॉक्स कल्चरल नॉर्म की लड़कियों ने पढ़ना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह. So that has been already initiated, and when it comes to actual implementation of education, I think it should come from all of us, or particularly the responsibility lies more on the educated class, the so-called teachers and professors, because unless and until we understand इसका महत्व कि नहीं, जेंडर जो है ना, ये देखो, ये किसी को पूछ के नहीं आए हुए, मेरे को किसी ने पूछ के फीमेल नहीं बनाया है. इट इज अ natural organic thing, and then just accept that in the very natural way, जैसे है, और उसे उस तरीके से आगे बढ़ाओ ना. आप अवेयरनेस कैंप करिए, या जैसे बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह. सो दीज आर गुड इनिशिएटिव, बट सी टू द स्पिरिट ऑफ इट, उसको अच्छी से ये करो, और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए कि हमें डर ना लगे कि अगर कल को मेरी बेटी डॉक्टर बन गई और अगर उसकी नाइट ड्यूटी है तो मुझे डर नहीं लगना चाहिए. सो जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, आई डोंट थिंक हम उसको इसेंस उसका जो है वो समझ पाएंगे. बट यस, एजुकेशन डज हेल्प इट. एजुकेशन इज द प्रोबेबली ओनली थिंग विच हैज हेल्प्ड इन अचीविंग टू दिस लेवल. एजुकेशन नहीं होता तो शायद 127th रैंक भी नहीं आता, ऐसा मुझे लगता है. Yes, madam. Very true. Thank you, ma'am. Dr. Prashant sir. मॅडम नमस्कार. खूप मार्मिक आणि खूप करंट सिच्युएशन मध्ये जी आवश्यकता त्या प्रकारचं आज आपलं लेक्चर डिलिव्हर केलं. फक्त एक विचारायचं असं आहे की वुमेन एम्पॉवरमेंटच्या नावाखाली समजा त्या लोकांना निवडणुकीमध्ये म्हणा किंवा राजनीतीमध्ये समजा त्यांना रिझर्वेशन देण्याचा जो प्रयत्न झालाय करण्यात आलाय, त्यामुळे यावरती सोल्युशन काही मिळू शकेल असं तुम्हाला वाटतं का मॅडम? Sir, Abhi, again, don't quote it as my political opinion. This is my academic opinion. See, what has happened, na? Sir, अपने यहाँ जैसे आप political बात कर रहे हो, how much percentage of voting we do? It is hardly 56 to 60%. Now, out of this 60%, how many are female? Around 28%. Around 24 to 28% are female, and then rest is male. Now, how they will divert? एंड आप मेरे ओपिनियन के साथ एग्री करेंगे कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स दे डोंट हैव दिस थिंग. बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है. तो क्या होता है ना कि इस वक्त
जब उनका वो इंटरेस्ट नहीं है तो दे गेट इजीली डाइवर्टेड, यू नो। आप मुझे 1500 रुपए दो, मैं पूरा वोट आपको दे दूंगी, आप मुझे 2000 दो, मैं आपको दे दूंगी। सो दे probably cannot visualize that what is the repercussions or impact of their वोटिंग। एंड इसी का फायदा जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज लेते हैं। देखिए हमारी कंट्रीज में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, दिस और दैट, जो भी गवर्नमेंट है, दे ऑल वर्क फॉर इलेक्टोरल बेनिफिट्स। देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी जो सच्ची में बोलेगी कि हम आपका कुछ भला करना चाहते हैं। और इलेक्टोरल बेनिफिट में ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि कितने % लोग आपको वोट कर रहे हैं। तो सही अगर है, वो फीमेल है सत्ता तो के लिए सब कुछ है, तो वही मतलब मेरी सोच एंड है। इट इज वेरी सब चीजें। डिफिकल्ट टू Yes. कन्विंस द मैन, बट इट इज वेरी इजी टू कन्विंस द फीमेल। एंड आई 1500 रुपए में आपका वोट खरीद रहे हैं और आपने दे दिया। इट इज एज सिंपल एज दैट। That is very easy outside, but inside the home, actually, it is difficult to make the sense for such kind of thing. Thank you, madam. Thank you very much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? Yeah. If there are no queries, we can just log off. No Yes, issues. thank you so much, madam. Once again, I extend my heartfelt thanks to Dr. Payal, madam, for engaging an informative session for all the participants. Thank you once again, madam, from all of us. Thank you so much. Thank you so much. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। आज के सेशंस यहीं पे ख़त्म होते हैं और कल अपना रेगुलर टाइमिंग रहेगा 10:30 से। आज सुबह मुझे ऐसा देखा गया कि बहुत सारे तो नहीं, बट कुछ 4-5 पार्टिसिपेंट्स बहुत लेट ज्वाइन हुए हैं। तो मैंने आज के दिन तो अलाउ किया, जैसे दीप्ति मैडम हैं, हुसैन सर हैं, दीपक मस्के हैं। तो इन लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप लोगों को टाइम पे जॉइन करना है। 10:15 बजे अपना सेशन शुरू होगा, तो 10:15 के 10:30 के बीच में ही आपको जॉइन करना है। ओके मैम। आज का रिपोर्ट सबमिशन आप लोगों को रात के 12 बजे तक सबमिट करना है। रिपोर्ट सबमिशन की लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर की है ग्रुप में। अभी मेरा 2 बजे से नेक्स्ट कोर्स का सेशन है, तो ये मैं मीटिंग कंटिन्यू रख रही हूँ। आप लोगों को मीटिंग से लीव करना है। FIP के पार्टिसिपेंट्स, आप मीटिंग को लीव करिए। हम कल मिलते हैं 10:15। ओके मैम। थैंक यू सो मच। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू सो मच। ओके मैम। थैंक यू थैंक मैडम। यू। Thank you, ma'am. यस, आप लोग लीव Thank you, करिए। ma'am. दूसरे थैंक यू पार्टिसिपेंट मैडम। ज्वाइन कर रहे हैं।